ہم سب کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی بائبل میں پروفیسیز دی گئی ہیں، جو کچھ بھی بائبل میں لکھا گیا ہے، پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو سب کچھ جو ہے بائبل کا جو خلاصہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم ابدی زندگی کو حاصل کریں، ہم اپنی نجات کو حاصل کریں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں، ہم برا کی ضیافت میں شریک ہو سکیں، برا کی شادی کی ضیافت میں ہم شریک ہو سکیں۔ پوری بائبل کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی جو ہے وہ بات ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور ہمیں اسی پر غور کرنا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کو سمجھیں، کیونکہ جو پیچھے بائبل میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے یا جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمیں ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہمیں بڑھنے کے لیے ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم مکاشفہ کو سمجھیں اور مکاشفہ کا علم حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو جانیں کہ مکاشفہ میں جو ایونٹس لکھے ہیں وہ کیا ہیں اور وہ کب پورے ہونے ہیں اور کس طرح سے پورے ہونے ہیں، اور ان کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھے بغیر جو ہے ہم جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے جو ابدی زندگی ہے، یا نئے یروشلم میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم مکاشفہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ اگر ہم محنت کرتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں ہم محنت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اور جو ہے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو ایک ایونٹ جو ہونے والا ہے، جو آنے والا ہے، جس کے لیے ہم سب تیاری کر رہے ہیں اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے، اور وہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت ہے، خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہے، جب ہمیں اس کے بارے میں ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا محنت بیکار ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے جب تک ہمیں یہ ہمارے اوپر رویل نہ ہو کہ وہ واقعہ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور کس طرح سے ہونا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اس کا انتظار کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے اس میں داخل ہونا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ جو ہے وہ اپوسل جان یوحنا جو ہے خدا یسوع مسیح کا شاگرد، جو سب سے پیارا شاگرد ہے، اور یہ واحد شاگرد ہے کہ جو اپنی طبعی موت جو ہے وہ مرا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی طبعی موت کیسے ہوئی تھی، مطلب وہ کیسے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت بوڑھا ہو کر جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ جو مکاشفہ کا جو ہے یہ 95-96 اے ڈی میں جو ہے وہ لکھا گیا۔ اگر ہم کہیں کہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ جو ہے اپاسل جان، اگر ہم اس میں ذرا دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 5 W ہیں اور ایک H ہے۔ اس میں 5 W کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس پر ظاہر ہوا، کس پر ظاہر ہوا، یہ اپوسل جان پر جو ہے یہ ریولیشن اپوسل جان کو دی گئی۔ وین کب اس کو دی گئی؟ آج سے 2000 سال پہلے۔ اور ویئر کہاں پر اس کو دی گئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پتمس کے جزیرہ پر جب وہ قید میں تھا تو تب وہاں پر اس کو دی گئی تھی۔ اور وٹ اس میں کیا دیا گیا اس کو فیوچر کے ایونٹس دیے گئے، جو فیوچر اب جو بہت ہی قریب ہو چکا ہے۔ اس وقت تو شاید ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب تھا، یہ اس میں لکھا ہے کہ بہت جلد ہونے والے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اب وقت پورا ہوا ہے، اب وہ ایونٹس جو ہیں اب وہ پورے ہونے والے ہیں، اور اب وہ ٹائم ہے۔ اور کیسے اس کو دیا گیا؟ یہ جو ہے اس کو ویژن کے ذریعے دیا گیا تھا۔ اس میں جو کچھ بھی اس کو دکھایا گیا تھا اس نے ویژن دیکھا تھا، اس نے رویا دیکھا تھا، اس میں جو ہے اس نے ریئل جو ہے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا ہوتے ہوئے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی اس کو دکھایا گیا تھا اس کو جو ہے ویژن میں دکھایا گیا تھا، جیسے رویا میں، خواب میں اس کو سب کچھ دکھایا گیا تھا، لیکن یہ سارے ایونٹس جو ہیں ابھی تک پورے نہیں ہوئے، اب ان کا وقت جو ہے پورا ہونے کا ہو چکا ہے، اور اب کچھ عرصے سے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ سارے ایونٹس پورے ہو رہے ہیں، اور ہم اس آخری ایونٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جب خدا یسوع مسیح نے آنا ہے۔ تو میرے عزیزو، کیوں دیا گیا؟ وائی مطلب جو ہے وہ کیوں دیا گیا؟ تو اس لیے دیا گیا تاکہ جب یہ ساری پروفیسیز پوری ہوں
تو ہمیں جو ہے ہمیں پتہ چل سکے اور ہم جان سکیں کہ جو ہے اور ہم ایمان لا سکیں. جیسے میں نے آپ سب سے کہا ہے کہ بائبل کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حاصل کریں، اپنی نجات کو حاصل کریں، اور ہم اس ایونٹ کو، جب وہ ایونٹ پورا ہو اور پورا ہونے کا وقت ہو، تو ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم اس میں داخل ہو سکیں. نہ کہ ہم ان جو ہے وہ 5 بیوقوف کنواریوں کی مانند ہوں کہ جو کلام تو پڑھتی تھیں، جن کے پاس کلام کا چراغ تو تھا لیکن ان کے پاس کلام کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے وہ اس ایونٹ کو پہچان نہ سکیں اور وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں. اور وہ 5 عقل مند کنواریاں جو کلام پڑھتی تھیں اور کلام کو بڑی گہرائی سے پڑھتی تھیں اور بہت ڈیپلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتی تھیں، اور ان ایونٹس کا ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے، کب اور کہاں پر ہونے ہیں، تو وہ اس لیے جو ہے اس شادی کی ضیافت میں وہ شریک ہو گئیں. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے جو ہے اتنا جو ہم محنت کرتے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک ہم مکاشفہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس کو یوحنا کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ قیدی بنا دیا گیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی اور جو مذہبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر روم جو ہے، روم کی طرف سے جو ہے جزیرہ کے پتمس کے جزیرہ میں ان کو قیدی بنا دیا جاتا تھا، اور وہاں پر وہ بڑی سخت ان سے محنت لی جاتی تھی. وہ کان تھی جہاں پر وہ مطلب کھودتے تھے کوئلہ وغیرہ، یہ سارا وہ کام اور سخت مشقت ان سے لی جاتی تھی. اور رومی جو ہے، رومی جو سپاہی تھے وہاں پر ان پر ظلم کرتے تھے، ہم سب یہ جانتے ہیں. تو میرے عزیزو، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کیوں یہ دیا گیا، اس لیے دیا گیا تاکہ ہم جب یہ واقعہ رونما ہوں تو ہم پہچان سکیں کہ ہاں یہ وہی واقعات ہیں یا وہ ایونٹس ہیں جو جن کا ذکر مکاشفہ میں دیا گیا ہے، اور جن کا خداوند یسوع مسیح نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا تھا، اور اب یہ وہی واقعات ہیں جو پورے ہو رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے 22 چیپٹر ہیں، اور اس کی جو ہے 404 اس کی جو ہیں ورسز ہیں اس کے اندر. اور اس کی جو اگر ہم اس کا کنکلوژن دیکھیں کہ اس کی پوری بک کا جو کنکلوژن ہے وہ پہلے باب کی پہلی 8 آیات ہیں، جو مطلب اس کا خلاصہ ہے، جو اس کی پوری بک کا خلاصہ ہے، وہ پہلی 8 آیات ہیں. اور اس کی جو پوائنٹس ہے، اس کا جو اس کی ورس ہے وہ جو ہے 1 2 3 ہیں. پہلی جو 3 آیات ہیں وہ جو ہیں وہ کی پوائنٹس ہیں اس بک کے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ریولیشن کیا ہے. ریولیشن جو ہے خدا یسوع مسیح، ریولیشن بھید نہیں ہے. ریولیشن کا مطلب ہوتا ہے اوپن کرنا، کھولنا. اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح نے وہ سب کچھ جو ہونے والا تھا وہ یوحنا پر اوپن کیا، یوحنا پر کھولا اور اس کو رویا میں دکھایا. اور خدا یسوع مسیح نے وہ ساری چیزیں، جو بھی ججمنٹس ہیں یا جو بھی سزائیں ہیں اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے دنیا کے لوگوں پر، ابلیس کے لوگوں پر، اس بیسٹ پر، اس کسبی پر، وہ کون ہے، بیبلون کی تباہی، یہ ساری چیزیں جو واقعہ ہونے والی ہیں وہ سب کچھ خدا یسوع مسیح نے اپنے بندہ کو دکھایا، اور خدا یسوع مسیح نے ان کو کیا. لیکن ایک بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر جب یہ جو ہیں واقعات جو ہیں جب ویژن میں اس کو دکھائے گئے ہیں، رویا میں اس کو دکھائے گئے ہیں، تو اب جب کہ پورا ہونے کا وقت ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ کب یہ پورے ہونے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بے شک مکاشفہ میں خدا یسوع مسیح نے یوحنا پر سارے بھید جو ہیں وہ کھولے ہیں، رویا میں سب کچھ دکھایا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی مکاشفہ کی بک ایک مسٹری ہے، ایک بھید ہے، جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بھید میں بیان کی گئی ہیں، پیرابلز میں بیان کی گئی ہیں. اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ علامتی زبان استعمال کی گئی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے مطلب 2000 سالوں سے ہی بہت سارے لوگ اس کتاب کو سمجھنے، اس کتاب کو پڑھنے اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جو ہے کمنٹریز کی ہوئی ہیں. بہت ساری، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں یا کہیں بھی دیکھ لیں، گوگل پہ دیکھ لیں، آپ بکس پڑھ لیں، تو بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، جن میں کہ بہت ساری جو کمنٹریز ہیں وہ انسان کی اپنی عقل اور سوچ کے مطابق ہیں، جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اور ریولیشن یا وہ جو ہے انٹرپریٹیشن وہی ہے، قابل قبول ہے، جو خدا کے روح کی ہدایت سے دی جاتی ہے اور جو خدا کی طرف سے دی جاتی ہے. یقیناً اگر
रोया में उसने देखा था, तो अब कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जिसको खुदा यीशु मसीह जो है वो ये दिखाएंगे कि भाई ये अब वाकयात पूरे होने वाले हैं जो मैंने अपने बंदा को रोया में दिखाए थे, अब उनके पूरा होने का वक्त है। तो वो कहाँ पर पूरे हो रहे हैं, कैसे पूरे हो रहे हैं, और कब पूरे होने हैं, और क्यों कर पूरे होने हैं, ये सारी चीजें जो है कोई ना कोई तो होगा जो हमें सिखाएगा और हमें बताएगा। तो हम सब ये जानते हैं कि अगर हम ये देखें रेवलेशन के बारे में, तो रेवलेशन जो है उसमें जो है उसकी किस्में हैं। पहली वो रेवलेशन है जो खुदा की तरफ से दी गई, किसको? अपोस्टल जॉन को। अगर हम एक रेवलेशन वो होती है जो प्रोफेटिक विजन होता है, मतलब जो एक कोई भी प्रॉफिट जो है, कोई भी नबी जो है वो एक नबूवत करता है, तो वो भी एक रेवलेशन है। इसके अलावा जो है वो भी इवेंट्स हैं जो बहुत फ्यूचर में होने वाले होते हैं और बताए जाते हैं, तो ये भी जो है ये भी एक रेवलेशन है। इसके अलावा जो है जो पैराबल्स में जो तमसीलें खुदा यीशु मसीह ने बयान की थी खुदा की बादशाही के बारे में, और वो भी सील्ड हैं। मतलब जब खुदा की बादशाही के बारे में खुदा यीशु मसीह ने जितनी भी तमसीलें बयान की थी वो सब सील्ड थी, वो खुली नहीं थी, वो ओपन नहीं थी। सिर्फ खुदा यीशु मसीह जो है वो अपने शागिर्दों पर ओपन करते थे, जबकि अवाम में, हजूम में वो सिर्फ सील्ड ही बयान करते थे, जिसका मतलब उनको अपने शागिर्दों को समझाना पड़ता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है वो पैराबल्स पढ़ ली तो हमने समझ लिया, जब तक हमें खुदा के रूह की हदायत से समझाया ना जाए, या हमें बताया ना जाए, और हम अपनी तरफ से उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। इसके बाद हम ये देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसको रेवलेशन को रोया में उसको दिया गया, उसने विजन में देखा। उसने विजन एक ख्वाब की तरह का होता है, लेकिन अब उसकी फिजिकल रियलिटी जो है अब होने वाली है। उसकी फिजिकल रियलिटी शुरू हो चुकी है, और हम सब जानते हैं कि हम उस टाइम पीरियड में गुजर रहे हैं जिसमें उसकी फिजिकल रियलिटी शुरू हो चुकी है। तो जब शुरू हो चुकी है तो फिर हम जो है, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे, जब हमें मुकाशवा की बुक का पता ही नहीं होगा, जब हम उसको डीपली स्टडी ही नहीं करेंगे। तो मेरे अजीजों, जब हम ये सारी जो है इनके फुलफिलमेंट को, जब इनके पूरा होने को, इन सारे इवेंट्स को पूरा होने को जो फ्यूचर में होने थे, जो यूहन्ना को दिखाए गए थे, उसके बारे में जब तक हमें पता नहीं चलेगा तो हम कैसे यकीन करेंगे जब खुदा यीशु मसीह आएगा। खुदा यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग, हम ये भी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो इस बात को भी मानते हैं कि जी हजरत ईसा आने वाले हैं, और उससे पहले दजाल ने आना है। जो दजाल है, हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो दजाल कहते हैं, उसने पहले आना है, और हजरत ईसा ने आना है, ये वो मतलब वो जानते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमें पता है कि वो कब आना है और कैसे आना है, किस तरह से आना है, वो इस बात को नहीं जानते। वो इस बात को नहीं समझते। कुछ समझते हैं कि खुदा यीशु मसीह फिजिकली आएंगे, तो फिजिकली नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिकल जो है बॉडी में वो पहले आ चुके हैं। अब वो रूह में आएंगे, उस जलाली बदन में आएंगे जो जिसमें वो उठाए गए थे। अब वो बदन जो फिजिकल बदन था, अब वो बदन उनका नहीं रहा, क्योंकि वो बदन जब मौत आई और कब्र में उतारा गया, तो फिजिकल बॉडी जो फना होने वाली बॉडी थी वो खत्म हो गई। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि मौत जो है हमें इसलिए दी जाती है कि हम इस फिजिकल बॉडी से जो है छुटकारा पा सकें जो फना होने वाली है, और हम एक जलाली और अब्दी बदन को हासिल कर सकें, ताकि हम उसमें खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। तो खुदा यीशु मसीह अब फिजिकल बॉडी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो कब्र में सो चुकी, कब्र में खत्म हो गई। अब नई और जलाली बॉडी और स्पिरिट में वो आएंगे। ये हमें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि कोई तुम्हें जो है वो धोखा ना दे दे कि देखो मसीह वहां है, देखो वहां है, यहाँ है, या कोई भी मतलब मेरा रूप धार कर आ जाए और कहे कि ये मसीह है तो हम उसके पीछे चल पड़े। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे बिजली जो है पूरब से पश्चिम तक पहुंचती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। मतलब कि स्पिरिट में मैं आऊंगा, मैं फिजिकल बॉडी में नहीं आऊंगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मकाशवा का मतलब जो है देने का मतलब क्या था, कि हम हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में जो है वो हमें बताया था कि हमेशा की जिंदगी क्या है। तो हमेशा की जिंदगी उन्होंने कहा कि वो ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे लिए ये जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए खुदा के बारे में,
जानना और उसके बेटे मसीह को जानना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं हैं, ये यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसकी 3 आयत में से मैंने पढ़ा है, जब तक हम उसको जानते नहीं हम उसके लायक वर्शिप नहीं कर सकते, और जब हम उसके लायक वर्शिप ही नहीं कर सकते तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां कैसे कहला सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि हम जो है खुदा में यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से जो है खुदा के बेटे और बेटियां जो है हम कहलाते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि शरीयत जो थी वो हमारे हमें इसलिए दी गई थी कि हम खुदा में यीशु मसीह को पहचान सके। तो अब शरीयत का काम नहीं है, जब हमने शरीयत को पहचान लिया और हम ईमान ले आए, जब हम ईमान ले आए हैं तो ईमान के सबब से हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। तो अब हम पर ये फर्ज है कि हम उस बाप को भी जाने और बेटे को भी जाने, और बेटे को जानने के बाद हम जो इवेंट्स होने वाले हैं उनको भी जाने कि वो इवेंट्स क्या हैं और किस तरह से होने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं पहली जो इसकी की पॉइंट्स वर्सेस है मैं उसको पढ़ूँ तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो सिर्फ खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से 4 आयत से पढ़ रही हूँ। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी है और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक, आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अल्फा और अमेगा हूँ। तो मेरे अजीजों, ये मैंने पहली 8 आयत पढ़ी हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो पूरी समरी है वो यही है कि अब वक्त क्योंकि करीब है, और यूहन्ना को ये विजन दिया गया और उसको उन 7 कलीसियाओं को खत लिखने को कहा गया, उन 7 कलीसियाओं को। तो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि ये जो 7 कलीसियाओं जिनका आगे जिक्र है, ये इफसस में 7 कलीसियाएं थी, और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना जो है इन कलीसियाओं का इंचार्ज था, वो उनका बिशप था। लेकिन अगर हम ये बात करें कि ये जो है इवेंट्स उसको जो दिखाया गया था, ये इवेंट अगर हम ये देखें कि उसको फ्यूचर में होने वाले को दिखाया गया था। कुछ इस बात की मतलब बात करते हैं कि उसने लिटरली जो है वो उन 7 कलीसियाओं को खत लिखा था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ विजन देखा था, उसने ख्वाब देखा था। कुछ मैंने कमेंट्रीज जैसे आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी है, कि बहुत सारी मतलब बताई गई कि ये जो पहली कलीसिया थी, फिर दूसरी कलीसिया थी, ये फिर तीसरी कलीसिया थी, मतलब जो जो वक्त गुजरता गया, जो जो कलीसिया की शक्ल बनती गई, मतलब ये फला टाइम पीरियड की कलीसिया है, ये फला टाइम पीरियड की कलीसिया, ये फला टाइम पीरियड की कलीसिया है। कुछ ने कहा कि ये फला कलीसिया, ये फला कलीसिया को जाहिर करती है, मतलब इस तरह से बहुत सारी इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी कमेंट्रीज जो हैं वो की गई हैं, वो बताई गई हैं। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले की थी, अब की थी, या पुराने जमाने की थी, या अब कोई खास 7 कलीसियां हैं या कोई खास चर्च है। लेकिन हमें सिर्फ एक बात याद रखने की जरूरत है जो हमारे लिए काबिल कबूल है, वो ये बात है कि बेशक वो चर्चेस पहले मौजूद थे, बेशक वो उनकी इब्तदाई इर्तकाई उनकी शक्ल है, उनको बताया गया है, या जो भी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन हमारे लिए जो काबिल गौर बात है वो ये है कि चर्च चाहे कोई भी हो, कलीसिया कोई भी हो, अगर तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो चल रही है, और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है उनका सब कुछ, उनके जो भी सर्विसेज हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो हो रही हैं, तो वो हम मान सकते हैं कि वो खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इन सारी कलीसियों के बारे में पढ़े तो हम सब ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जैसे जो पैगाम दिया है कि उनको किसी ना किसी कलीसिया से कोई ना कोई शिकायत जरूर है। तो मेरे अजीजों,
हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि कलीसिया वही है, चाहे वो पहली हो या अभी की हो या को खास कलीसियाएं हों या इस जमाने की कलीसियाएं हों। हमें ये काबिल गौर बात है कि हर वो कलीसिया जो पहले खुदा के साथ चलती है, लेकिन आहिस्ता 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 जब अबलीस जो है वहां पर काम करना शुरू करता है अपने ही बंदों के वसीला से, उस चर्च के बंदों के वसीला से, जब उस चर्च में काम करना शुरू करता है, तो फिर वहां पर जो है सच और झूठ जो है वहां पर दोनों की वर्शिप होना शुरू हो जाती है। जब दोनों की वर्शिप होना शुरू हो जाती है तो वो कलीसिया जो वो चर्च जो है वो खुदा यीशु मसीह को धोखा देता है, वो खुदा यीशु मसीह को धोखा देता है। यहाँ पर हमें ये बात गौर करने की जरूरत है। और खुदा यीशु मसीह ने हर कलीसिया के बाद यही कहा है कि जो गालिब आए, गालिब आने का मतलब क्या है कि हम पहचाने कि क्या ये चर्च या कलीसिया जो भी कायम की गई है, क्या ये खुदा की तरफ से है या इसमें अबलीस का भी कुछ हिस्सा है, अबलीस का भी कुछ हाथ है। हमारे लिए ये बड़ा जानना जरूरी है। अदरवाइज अगर हम ये नहीं पहचान पाए तो फिर हम कुछ भी नहीं है। हमारी वर्शिप, हमारा सब कुछ जो है वो बेकार है, वो बेफायदा है। हम कुछ भी नहीं समझे कि हम जीरो हैं और अभी भी जीरो पर ही खड़े हैं। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले तो हमें ये चीज जानने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि लिखा गया है कि बहुत जल्द आने वाला, और आगे हम सब जानते हैं कि जजमेंट हो रही है। जब जजमेंट हो रही है तो जजमेंट में वो सारे लोग आएंगे। और मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि खुदा को, मतलब ये जो जजमेंट लिखी गई है ये गैर कौमों के लिए जजमेंट नहीं है। ये जजमेंट गैर कौमों के लिए होगी, मतलब जो दूसरी कौमें हैं उनके लिए। उनको उनको क्रिश्चियनिटी से क्या है, उनको खुदा की बादशाही से उनसे खुदा की बादशाही को कोई खतरा नहीं है। अगर खुदा की बादशाही को खतरा है तो हमारे अपने अंदर के लोगों से खतरा है। और ये जो जजमेंट लिखी गई है ये हमारे ही लोगों के और उन्हीं चर्चेस पर आएगी जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और वो चर्चेस जो जो पहले तो खुदा की तरफ से, हम सब जानते हैं इस बात को कि इब्तदाई कलीसिया जब रसूलों ने कलीसिया बनाई थी तो वो किस तरह से मनादी करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ कलाम के मुताबिक मनादी करते थे। और जो जो कलीसिया बढ़ती गई और उसमें बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती गई। हम इस बात को जानते हैं हिस्ट्री को जब अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम ये देखें कि जब कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद हुई और कैथोलिक कलीसिया जो है वो आगे बढ़ी और जो है वो चेंज होती गई, और उसमें कितनी सारी चीजें उसमें शामिल कर दी गई जो कि खुदा की तरफ से नहीं है, जो कलाम के मुताबिक नहीं है। इसी तरह से हर कलीसिया ने अपनी अपनी उसके मुताबिक जो है रवायात के मुताबिक उसमें बहुत सारी चेंजेस करनी। तो आपका क्या ख्याल है कि खतरा किस से है? इस्लाम से है खतरा क्रिश्चियनिटी को? नहीं। खतरा अगर है तो चर्च के अंदर के लोगों से है, और उन्हीं की जजमेंट होनी है। जो मकाशरों में जितनी भी जजमेंट दी गई है उस उन्हीं की जजमेंट होनी है जिन्होंने चर्चेस के अंदर जो है झूठ और सच की जो है वो मनादी हो रही है, जहां पर मतलब अबलीस को भी खुश किया जा रहा है और खुदा के भी, मतलब धोखे में तो खुदा के उसमें लोगों को है, लेकिन जो लोग भी उसके अंदर हैं और जो लोग समझ नहीं पा रहे या जो लोग उसका हिस्सा हैं और जो लीडरान हैं वहां पर, जो शेपर्ड्स हैं, जो उनके हुक्मरान हैं, जो पास्टर्स हजरात हैं, उस कलीसियाओं को, उन कलीसियाओं के जो उनको जो है वो डील कर रहे हैं या उनको लेकर चल रहे हैं, उन कलीसियाओं को, वो ज्यादा सजा पाएंगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसके फरिश्ता को ये लिख। और फरिश्ता जो है वो शेपर्ड है, वो चरवाहा है, वो पास्टर है जो अपनी कलीसिया को लेकर चलता है। तो मेरे चीजों, हमें जो है ये बात याद रखने की जरूरत है कि ये जितनी भी जजमेंट लिखी गई है या जो कुछ भी लिखा गया है, ये हमारे उन लोगों के लिए लिखी गई है जो झूठ और सच की जो है वो प्रीचिंग कर रहे हैं, और खुदा के कलाम को छोड़कर उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें शामिल कर ली हैं। तो हमें ये बात याद रखने की जरूरत है। इसके बारे में आगे अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर इसमें सीखेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे और कब, और ये सारी चीजें हम इस पर गौर करेंगे। तो खुदावन हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आइए, हमारे साथ भाई फ्याज हैं। मैं चाहूंगी कि वो दुआ करें, इस कलाम की शुक्रगुजारी करें।